Let me tell you how Rabindranath Tagore became so famous. What was so great about him? He wrote that little book on, poems of love, and they're called Gitanjali. Just regular poems on love. You can read them, Gitanjali. You'll be surprised what is so great about it. Regular, normal poems on love. And people keep wondering who was his girlfriend, who was his lady love, for whom he's writing all that. But well, that doesn't matter, whosoever it was. What fascinated, each one of us perceives things in our own ways. So, what fascinated me was why did this book, how this book caught the attention of the Nobel Committee and he was given a Nobel Prize? Just for writing a book on poems on love. So that's fascinating to me. The person who, and a committee who decided that this deserves Nobel Prize. Don't know, there is something within us, and particularly a committee who takes that decision to give the highest prize to somebody. They are profound, deep people. And actually, all of us are, just like platonic love has become such a word. The whole world talks about platonic love. Something must be there in that love that people gave this name, title to some particular love which is called platonic. After Plato's name was attached to it. Platonic love. And after all, Rabindranath Tagore talks about platonic love. What is this love which, becomes so prominent and dominant in the entire world that people talk about it, although nobody experiences it? But after all, we keep it at that pedestal that we give a name, platonic love. We give Gitanjali, Rabindranath Tagore, Nobel Prize. It is the need of every human soul, let me tell you. Is there Hindi for this? Nishkam Prem. No, you misconstrue it. Nishkam. Nishkam because we don't know what is calm. We don't know what is calm. Kamdev, and we misconstrue everything in our own because it's our thinking. Whatever we may, it all depends upon our grooming and sanskar, it's also called. Sanskar means whatever has been fed to you since your birth. So calm becomes sex, as if. Calm doesn't actually, in Sanskrit word calm doesn't mean that, but this is what we think it is. So nishkam we can't call it. So what is this love for which Rabindranath Tagore was decorated with the Nobel Prize? What is this love which became known as platonic love? It can be called nirapeksh. Nirapeksh love. Nirapeksh is without expectations. Love with no expectations. You are completely available, but nothing required from your beloved. Nothing required. जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए. What does it mean, my beloved?
स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू, उसको कोई दुख नहीं हो सकता। बट ये कैसे संभव है? उसको तो फिर भी हेडेक भी होंगे, उसको बैक एक भी होंगे, उसको बुखार भी होगा, वो बूढ़ा भी होएगा, सब कुछ होगा। फिर वो स्वामी क्या है, कौन है? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा। क्योंकि बोल न जाने माया मद माता, ये बात समझ नहीं आ सकती उसको जो इस माया में फंसा हुआ है। जो माया मीन्स चित्तवृत्तियों में जो फंसा हुआ है, उसको ये बात समझ नहीं आ सकती। ये बात समझ ही नहीं आ सकती। बोल न जाने माया मद माता, मरना चित्त न आए। उसको पता नहीं है कि वो मर रहा है, जो माया में फंसा हुआ है, जो चित्तवृत्तियों में फंसा हुआ है। उसको कहाँ पता है कि वो मर रहा है? और उसको ये बात भी समझ नहीं आ सकती कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किच्छु नाही, जाम नहीं आवे नेड़े। अरे तेरे से तो जिसको प्यार हो जाए उसके पास तो यमराज भी नहीं आ सकता। मगर ये बात समझ तो सिर्फ संतों को ही आ सकती है, और किसी को नहीं आ सकती। हरे राम। तो संत क्या होता है? जिसको प्लेटोनिक लव का एक्सपीरियंस हो, जो रविंद्रनाथ टैगोर बन जाए, तभी तो गीतांजलि निकलेगी। हृदय से गीतांजलि निकलेगी कैसे? और जिसको कुछ थोड़ा सा भनक झलक मिल गई हो प्लेटोनिक लव की, वही कोई बैठा होगा नोबेल कमिटी में, जिसको ये प्लेटोनिक लव की झलक मिल गई रविंद्रनाथ टैगोर में, और ही वॉज acclaimed to be a saint, you know। और क्या था वो? सिर्फ प्रेम की बातें करता था बस। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछु नाही। कोई डर नहीं, निडर है जिसको प्लेटोनिक लव मिल जाता है। और प्लेटोनिक लव क्या होता है? निरपेक्ष प्रेम, नो एक्सपेक्टेशंस। जिसका भगवान के साथ ऐसे प्रेम हो जाए कि मुझे खा जाओ, मुझे मार दो, जो मर्जी कर लो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें प्रेम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लव यू, जस्ट अलाउ मी टू लव यू, आई नीड नथिंग फ्रॉम यू। और ऐसे कौन बोल सकता है? आदमी तो अपने आप को बचाना चाहता है, मरना थोड़ा कोई चाहता। मगर ऐसा प्रेम हो जाए जब किसी को कि बोले कि तुम, बस आई एम रेडी टू डाई फॉर यू, यू डू वॉट एवर विद मी, मेरी हेडेक वेडेक की मुझे कोई परवाह नहीं है, होने दो, तुम कुछ भी होने दो मुझे, मगर जस्ट लेट मी लव यू। इसको प्लेटोनिक लव बोलते हैं। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक जी निकाल राखी मेरी। मुझे कुछ तुमसे जानना नहीं है, मुझे कुछ भी तुम्हारे से कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञान ध्यान ना, मुझे मेडिटेशन सीखनी है, ना मुझे कोई ज्ञान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। को मुझे नहीं चाहिए क्या ठीक है क्या गलत है, बस तुम ही हो सब कुछ मेरे लिए। न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ऐसा शब्द है ना गीतांजलि में, तभी तो उसको नोबेल प्राइज मिल गया। तभी तो रविंद्रनाथ टैगोर की बातें करते हैं। ये अपने आप तो इतना कोई पागल बन नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। सो कोई ना कोई तो जिंदगी में आएगा जो इतना ही पागल होगा, और आपको भी उतना ही पागल कर देगा, धीरे 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 धीरे, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है नकाब
निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। वो आफताब क्या होता है? दैट प्लेटोनिक लव, जो कहे कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम प्योर लव, आई नीड नथिंग। और जो वर्ल्डली लव क्या है? बच्चों से प्रेम है, माँ को बहुत प्योर लव है, पर वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। सारे ही वर्ल्ड के जो लव हैं, वर्ल्डली लव, पीपल लिव इन लव, बट दे आर ऑल सापेक्ष, दे आर ऑल अ बिजनेस। यू, इट्स अ गिव एंड टेक। बट यहां एक लव है जो कहता है कि मुझे चाहिए कुछ भी नहीं, बट ले तुम सब कुछ लो। ऐसा तो प्यार अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो अदर वर्ल्डली हो जाता है। हरे कृष्ण। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिन काल राखी में। तो मेरा गुरु है, बस वो ही सब कुछ। अगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहता, जान सकता भी नहीं। बस मुझे तो प्रेम ही करना है। ये पागलपन है ना। इस पागलपन की ही सबको वो तलाश है दुनिया में। इसीलिए उसको नोबेल प्राइज दे दिया जाता है। इसलिए हम प्लेटोनिक लव के एसेज पढ़ते हैं। हरे राम। उसको गुरमुख बोलते हैं, जिसको इतना प्रेम हो जाए उसको गुरमुख बोलते हैं। गुरमुख नादम, गुरमुख वेदम, गुरमुख रहस्यमाय। वो समा जाता है, वो ठहर जाता है। उसको और कुछ चाहिए नहीं होता जिंदगी में। भटकन खत्म हो जाती है, और रहाव हो चुका होता है, ठहर जाता है। उसको असली तत्व के दर्शन हो जाते। सगल तत्व में तत्व ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हरि कीर्तन में उत्तम तुना, नानक गुरु मिल गावे गुणा। जिसको गुरु मिल जाता है उसको जिंदगी समझ आ जाती। उसके लिए जिंदगी कोई मिस्ट्री, कोई रिडल नहीं रह जाती। और कहेगा वो भी यही कि एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। एक ऐसी मिस्ट्री है जो समझाई तो नहीं जा सकती, समझी तो नहीं जा सकती, मगर टेस्ट की जा सकती है। क्योंकि गुरु को भी समझा नहीं जा सकता, गुरु समझा भी कुछ नहीं सकता, मगर गुरु को टेस्ट किया जा सकता है। हरे राम। सगल तत्व में तत्व ज्ञान। जिंदगी में बड़े तत्व निकालते रहते हैं। मैंने तत्व निकाल लिया है जिंदगी का, मैंने ये तत्व निकाल लिया, वो तत्व निकाल लिया, मैंने ढूंढ लिया है, एनालिसिस कर लिया है। मेरे को भी बड़ा लोग बताते हैं तत्व, बड़ा कुछ जानते हैं, मगर सगल तत्व में एक ज्ञान ही एक तत्व है। ज्ञान क्या होता है? एक्सपीरियंस ऑफ लव, ऑफ अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल, निरपेक्ष, नो एक्सपेक्टेशंस। निष्काम नहीं, निरपेक्ष लव, अनकंडीशनल। जब वो हो जाएगा ना, तो आप भी यही कहेंगे, ना सबूत है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है।
अदरवाइज आप माला जपते रहेंगे, कुछ बात नहीं बनेगी। आप तो गिनती कर रहे हैं कि कितनी माला जप ली, वो फिर गिनती विनती खत्म हो चुकी होगी, फिर तो आपको कहेंगे बस मेरे को माला जपनी है और कुछ नहीं कर, नंबर वंबर नहीं गिनने हैं, और कुछ मांगना नहीं है इसके बदले में, केवल माला जपनी है। क्योंकि तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। नाम तो छोटा सा है, बस राम 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 राम, वाहेगुरु वाहेगुरु, मगर उससे हो क्या जाता है मेरे अंदर मुझे नहीं पता। तेरा नाम जपते ही सोचते ही मेरे अंदर क्या हो जाता है मुझे भी नहीं पता, मैं समझा नहीं सकता किसी को। और ऐसा सीक्रेट नाम है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। सो सगल तत्व में तत्व ज्ञान, सर्व ध्यान में, हर तरफ ध्यान ही तो लगा हुआ है। लोग जब मेरे से पूछते हैं मेडिटेशन कैसे करते हैं सिखा दीजिए, तो मेडिटेशन तो वर्ड यूज मत करा करो, पहले तो ध्यान बोलो। ध्यान, ध्यान तो लगा ही हुआ है किसी ना किसी चीज में। कभी आप सोच रहे हो कि आज क्या क्या करना है, किसको मिलना है, कभी आप सोच रहे हो कल कौन मिला था, कितने पैसे बनेंगे, कैसे ये करना है, कैसे पोस्टिंग करानी है, किससे किसको मिलना है, ये सब कुछ तो ध्यान तो लगा ही हुआ है। मगर सर्व ध्यान में एक ध्यान, जब आपके अपने ही बिलावट में ध्यान लग जाएगा, उसके सिवा कुछ मन में आएगा ही नहीं, तो उसको ध्यान बोला जाएगा। सर्व ध्यान में एक ध्यान, वाहिगुरु। हरि कीर्तन में उत्तम तू ना, एक धुन बज रही है आपके अंदर, वो आपका भगवान है, वो आपका गुरु है, वो सत्य साई बाबा है, वो गुरु नानक है। आपके अंदर जब आप चुप कर जाओगे, पांचों वृत्तियों से परे, जब सोच विचार कोई खा जाएगा आपकी, तो जो बचेगा वो धुन है। उस धुन को हम गीतांजलि का रूप दे देते, उस धुन को श्री कृष्णा भागवत गीता का रूप दे देते, उस धुन को प्रॉफिट मोहम्मद कुरान शरीफ का नाम दे देते, उस धुन को ही बाइबल बोलते। हरि कीर्तन में उत्तम तुना, वो एक धुन है। जब वो आपके अंदर बजना शुरू हो जाएगी, तो पता चलेगा गीत क्या होता है, स्वामी कौन है, गुरु कौन है, सत्य साई बाबा कौन है, श्री कृष्ण क्या है, श्री राम क्या है। और ये सब कैसे होगा? नानक गुरु मिल गावे गुणा, तब पता चलेगा कि जिंदगी क्या है। और तब समझ आ जाएगी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। बोलना जाने माया मद माता, मरना चित ना आए। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछु नाही, जम नहीं आवे नेड़े। और जिसको वो प्रेम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसको आप प्लेटो बोल दोगे, सोक्रेटिस बोल दोगे, रविंद्रनाथ टैगोर बोल दोगे। हरे राम, हरे कृष्णा। निरपेक्ष प्रेम, लव, लव। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।